Hello, you're watching the network connecting state in one news. I'm Atar Bengia. So today, we, the team of the network, has reached to Namsai. So we are here at Namsai. So today, the BJP had underway mass rally of Eastern Parliamentary at Namsai. Meanwhile, JP Nadda, who is the national president of BJP, made his presence during the mass rally. Besides Mr. Nadda, CM Mr. Pema Khandu, DCM, and all other BJP MLAs and many of the Karyakartas and the people made their presence during the mass rally. So here's the report. हमारे प्रधान मंत्री जेपी नड्डा जी हमारे साथ से आ गए, इसलिए एक बार जोर से जेपी नड्डा हमारे प्रधान मंत्री राष्ट्रपति जी जेपी नड्डा जी का सम्मान करेंगे। मोदी साहेबे কৈছে অমৃত কাল যেতিয়া আমাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্ট 100 ইয়ার্স হ'ব, এই সময়ৰ 12 বৰ্ষটো আমি এতিয়াৰ পৰা তৈয়াৰী কৰিব লাগিব। একজন মানুহ পৰা নহ'ব, গোটেই ভাৰতৰ 140 কোটি মানুহে লগ লাগি আমি অমৃত কালত ভাৰতবৰ্ষৰ এই পৃথিৱীৰ নম্বৰ 1 দেশ হ'বলৈ আমি দিব লাগিব, যতে আমি সবে মিলি যোগদান দি কিনিহে আমি ভাৰতক আগত লৈ যাব পাৰিব। ইয়াতে আপোনাৰ চাওক, আজি আমি মোদী সাহেবক মই সদায় কওঁ আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টতো মই ক'লো, মোদী এই মানুহ হিচাপে মানুহ নহয়, मोदी रामर अवतार होय, मोदी साहब जैसे यीशु कृष्ण अवतार होय और अल्लाह अवतार होय, रिवर्ट होय किनी ताक उठे धर्मर गुरुवे ताक भारतबर्षक पताइছে और भारतबर्षक এই ভারত দেশত কিয় হয় কিনি যি কান্ট্রিত যি দেশত মোদী সাহেবে কদম রাখে এই দেশত গুল উঠে, পেস্টিভ মুক্ত হৈ যায়। অস্ট্রেলিয়াত গৈছে, আমেরিকাত গৈছে, ইউরোপ কান্ট্রিত গৈছে, এনেকুৱা হৈ যায় যে গোটেই কান্ট্রিটো ফেষ্টিভেল নিচিনা হৈ যায় মোদী সাহেবৰ পাছত ঘূৰিবৰ কাৰণে। এই ধৰণৰ মানুহে আজি আমি গভৰ্ণমেণ্ট বনোৱাৰ লগে লগে কোভিড মহামাৰী আহিলে, मोदी साहब कोविड महामारी केनेके करिले अपनी सबे उइटनेस আছে। मोदी साहब कले बोलो आमी सबे ताल बजाय दिम, 140 कोटी मानुहे ताली बजाइছে और तार पाছত একবার কলে মোদি সাহেব बोलो এই করোনা ফাইট করবার কারণে আমি মোবাইল লাইট জ্বলো, কেন্দ্রের লাইট জ্বলো, গোটে ভারতবর্ষৰ ৰাইজে মোদী সাহেবৰ একটা এলানত কেন্দ্রের লাইট জ্বলাই দিল। তার পাছত করোনা আৰু বাঢ়ি আছিল, তেতিয়া মোদী সাহেবে কলে बोलो 1 महीना लॉकडाउन करीब। आप इमेजिन करके देखिए 140 140 करोड़
मोदी साहब का उस ऐलान को माना, सबे मानिले, मानी किनी निजे एक महीना लॉकडाउन करिले। এতিয়া আপুনি ৰিয়েলাইজ কৰিছা আমেৰিকাৰ প্ৰেসিডেন্টে বলেও আমেৰিকাৰ মানুহে নামানে, ৰাছিয়াৰ প্ৰেসিডেন্ট বলেও নামানে, ইউকে প্ৰেসিডেন্ট বলেও নামানে। অকল এই পৃথিৱীৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া একজনে ক'লে যে এক মহিনা লকডাউন কৰিম, 140 কোটি মানুহে সাইলেন্টলি লকডাউনত থাকিব। এই মানুহজন ভগৱান নহলে কি হ'ব? তাৰ একটা কথাতে গোটেই ভাৰতবৰ্ষ ডিসিপ্লিনত আহিলে আৰু আজি করোনা এটু হিস্ট্রি হৈ গ'ল ভাৰতবৰ্ষত। লগে লগে 2টা ভ্যাকসিন जिसको इंट्रोड्यूस करिले और मोर देन 100 कंट्री मोदी साहबे वैक्सीन पठाई दिले और जिमान यात उपस्थित আছে সবে 2টা ভ্যাকসিন 3টা ভ্যাকসিন। আপনি ইমাজিন করুন 123 কোটি ভারতের সিটিজেনক ভ্যাকসিন দিলালে মোদি সাহেবে 123 কোটি। এতো ফ্রি কে আমি পালে এই কারণে আমি ভাবা নাই যে আমি 3টা ভ্যাকসিন লগাই কিনিও, ভাবা নাই যে এই ভ্যাকসিনৰ কি দাম আছে। এই সময়ত একটা ভ্যাকসিনৰ 1400 আছিলে, আপনি 2টা ভ্যাকসিন লগাইছে যদি 2800 আর আপনি 3টা ভ্যাকসিন লগাইছে যদি 4200। ভারতবর্ষত 4200 দামৰ ভ্যাকসিন দি কিনে আমাক মোদি সাহেবে বাঁচাইছে। অকল ভাৰতবৰ্ষত নহয়, শ্রীলঙ্কা, ভূটান, নেপাল, বাংলাদেশ, মালদ্বীপ নিচিনা ৰাজ্যক মোদি সাহেবে ফ্রি के বাঁচাইছে। और मोर देन 100 कंट्री चाइना भी सुख के इंडिया का वैक्सीन ही मंगाया इनडायरेक्टली और पाकिस्तान को भी दिया मोदी साहब ने, क्योंकि देश को बचाना है और दुनिया को बचाना है। ये नरेंद्र मोदी का शक्ति है। वो कोरोना काल हमारा जिंदगी में, हम सबका जिंदगी में एक बहुत काला दागी था, लेकिन उस है काला दागी को मोदी साहब ने मिटाले। आज कोरबात हुनु, कोरबात कविता से कोरबात देने को आसे हलेও আগৰ নিচিনা মহামাৰী কোনো আজি যিমান হাজাৰ ইয়াত মানুহ উপস্থিত আছে, নাম চাই সমাজে একত্ৰিত হৈ আছে, হলেও মই দেখা নাই কোনো একজনে মাস্ক পিন্ধি আছে। এই ধৰণৰ লিডাৰশ্বিপত আমি আজি ভাৰতবৰ্ষত কেনেকে আগ কৰিব লাগে, কেনেকে লৈ যাব লাগে, এইটো চিন্তা কৰিব লাগে সবে যে যিবোৰ ইয়াত উপস্থিত আছে। তাৰ ফলত মোদি সাহেবে কলে এক মহিনা লকডাউনত দুখীয়া হৈ কিনি মানুহে ক'ৰ পৰা পাব? লেবাৰ কাম কৰা মানুহে, সৰু মৰা বিজনেছ কৰা মানুহে ক'ৰ পৰা পাব? যিমান ভাৰতবৰ্ষত বিপিএল আৰু এপিএল অৰুণাচলত কোনোবা একটা মানুহ আছে নেকি যিজনে 5 কেজি চাউল পোৱা নাই? আজি নামচাইতো এনেকুৱা হৈ গ'ল যে জিংনু সাহেবে কৈ আছিলে सारा सबको फ्री राइस दे दिया है और दे रहा है। এই কারণে খেতি কৰিবলৈ মানুহ পোৱা নাই, এনেকুৱা অৱস্থা হৈ গ'ল। মোদি সাহেবে ফ্রি রাইস বাতিল। আজি ভাৰতবৰ্ষত কোনো মানুহ ক'ব নোৱাৰে যে মই ফ্রি রাইস পোৱা নাই। তাৰ ফলত চাফচিকুণ মানুহে থাকিব লাগিব। এই কাৰণে সবৰ ঘৰত টয়লেট বনাই দিলে। তাৰ পাছত আকৌ দুখীয়া মা, বাইদেউ, ভনী, ছোৱালীসকলে কৰি আনি কিনি জুই জ্বলাই ধোৱাতে কষ্ট হৈ আছে। সেইকাৰণে অগ্নি মহিলাকে গেছ সিলিন্ডার কানেকশন করে দিলে। তার ফলত নাই দুখীয়া মানুহবোৰৰ কাৰণে
जिमान बीपीएल हाउसहोल्ड আছে বস্তি বস্তিতে গোটে ভাৰত বৰ্গত কোটি কোটি ঘৰ মোদী সাহেবে বনাই দিলে। আজি কোনো ক'ব নোৱাৰে যে মই ঘৰ বনাই বিপিএল আছে তাৰ নয় আপোনাক পাব। তাৰ পাছত ক'লে মোদী সাহেবে নাই জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে পানীও লাগে। जल जीवन मिशन से अभी पेमा खांडू जी का नेतृत्व में डीसीएम साहब हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टीम अरुणाचल का नेतृत्व से गोरे गोरे पाइप पहुंचा दी से एक पाइप को सबोर गोरो पानी पहुंचा दी से मानुष जीवन राखिबोले की लागे खाबोले लागे ताकिबोले लागे पानी लागे लाइट लागे आरो गैस लागे सब पे जीतु प्रॉब्लम আছে ये डबल इंजन हमारा सरकार सबको पहुंचा दिया और फिर भी बोलता है कि नहीं हमको क्या मिला में ही प्रॉब्लम है हमारा इस देश में। आपको चाहिए रास्ता मोदी साहब आने से पहले तुरंत से लेके लोंगडिंगपोक जाने के लिए आसाम होके जाता था। हम सब इमेजिन कर सकते हैं उस काल को। आज बोगीबिल जाने पुरो अपनी कानोबारी हो जाओ कानोबारी तू लोंगडिंग तू कुंसा तू सांगलांग तू जोरामपुर मानमो कारसांग और महादेवपुर यात्रा गोकिने अपनी 2 लेन रास्ता दे तुआंग पाबो पारे अपना रास्ता लागे बोगीबिल ब्रिज आलुबारी ब्रिज सिसिनी ब्रिज और भूपेन हाजरिका ब्रिज और अपना तेजपुर डबल ब्रिज गुवाहाटी पांडुगा दलंग डबल ब्रिज और मोदी आने के बाद अभी ब्रह्मपुत्र का अंदर से भी आरो टानेल बनाई किनी इपार पूरा हेपार बनाई আছে इमेजिनेशन नासिले अपनतो आमी जोआ नासिले जे এনেকুৱা হ'ব। তাৰ পাছত আমি ট্ৰেন মোদি আহি কিনি ট্ৰেন নাহৰকগণত পৌঁছাই দিলে। এতিয়া মূৰ গৰ জনাই পৰা পাছিঘা এই উইন্টাৰত ৰেলৱে লাইন বিছাই দিব আৰু परशुरामपुरলৈকে ৰেলৱে যাব আৰু 2 লেন হৈ আছে। এনেকুৱা একটা ডিস্ট্রিক্ট নাই जोते नेशनल हाईवे নাই। आज दिल्ली से हवाई तक 2 लेन रोइंग से अनिनी जिसमें हम 13 आवर्स में 13 घंटा লাগিছিলে आज 6 घंटा आधाते अनिनी पाई যায়। अनिनीर আগত আৰু 4 কিলোমিটাৰ আৰু বনাই দিলে আৰু পাছিঘাটৰ পৰা ইনকাম 7 ঘন্টা আছিলে এই 7 ঘন্টা তো এতিয়া স্মার্ট লৰগুৰে 2 ঘন্টা আমি বুঢ়াবোৰ ড্ৰাইভ কৰিলে 2.5 আৱাৰ্স पासीघाट टू एलम टू आप दापोरिजो रागा जीरो ईटानगर से सेपा और 0 पॉइंट में टनल जहां हमेशा बगी होता था और तुआंग में टनल ऐसा प्रदेश डबल इंजन सरकार आप बना दिया। तो इस सरकार को हमको आगे ले जाने के लिए जितना यहाँ जिमान মানুহ यहाँ आज उपस्थित আছে सबे प्रचार কৰিব লাগিব যে আপুনি চাউলটো পাইছিলে গেছটো পাইছিলে টয়লেট পাইছিলে পিএমএ পাইছিলে পানী পাইছে ইলেক্ট্ৰিচিটি পাইছে এই ধৰণৰ যেটো সুবিধা আমাক দিছে এইবোৰক আমি কাউন্টি কৰি কিনি ইলেকশনত যাব লাগে। মই এতিয়া চাই আছো আমার फॉर्मर एमएलए मिनिस्टर मुकाइदर नुकुल साहब मेरा सामने में बैठा है। मैं उस दिन संपर्क से समर्थन के लिए उसका घर में गया था। नुकुल साहब हमको बोला है तबिर गाँव मत जाओ सबे वस्तु तो पहले एतिया की आलू लगे
মানুহে জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিচিটি লাগে দিলে, পানী লাগে দিলে, গেছ লাগে দিলে, ঘৰ লাগে দিলে, টয়লেট লাগে দিলে, ভেকচিন দিলে, তাৰ ওপৰত আয়ুষ্মান ভাৰতত 5 লাখৰ মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স, কর্ণাটক চিফ মিনিস্টাৰৰ আৰোগ্য চিএম চিফ মিনিস্টাৰ অৰুণাচল আৰোগ্য যোজনা 5 লাখ মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স আৰু লোকক কেনেকৈ চামুচ লৈ কিনি পাব্লিক খুৱাব বুলি মোক ককাই নুকুল চাহাবে সেইদিনা মোক ক'লে। এইটো ৰিয়েলিটি আছে। চবে বৰ ফলতো আমি সদায় ৰিমাইণ্ড কৰিব লাগিব ৰাইজক। আৰু বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনৰ ডেভেলপমেণ্ট এতিয়া আমি আৰ্টিকল 370-35 হাতাই দিলে আমাৰ অৰুণাচলৰ ৰাইজে তাৰ বেনিফিটটো নেজানে। পাৰ্লিয়ামেণ্ট বনাই দিলে নতুন ব্ৰিটিছ শাসনৰ যিটো গোলামী নিচান আছিলে তাৰ পৰা মোদী চাহাবে ওলাই কিনে নতুন পাৰ্লিয়ামেণ্ট বনাই দিছে ভাৰত কাৰণে। সুভাষ চন্দ্ৰ বসৰ ষ্টেচু ইণ্ডিয়া গেটত আনি দিছে। আৰু কি কৰিব মোদী চাহাবে? जो ৱাৰ প্লেন আইএনএছ প্লেন জাহাজ ৰাছিয়াৰ পৰা আমি কিনিছিলো, আজি আইএনএছ জাহাজ 20-30 ৱাৰ প্লেন লৈ লৈ সাগৰত ওলমি থকা জাহাজ নিজে বনাব পাৰে। আৰু আমেৰিকাৰ পৰা, ৰাছিয়াৰ পৰা, জাৰ্মান, ফ্ৰান্স, ইউকেৰ পৰা আমি গুলি বাৰুদ কিনিছিলে। মোদী চাহাবে ক'লে এই ধৰণে নহ'ব, আপুনি আহক মোৰ দেশত, ইয়াতে ফেক্টৰী লগাওক, ইয়াতে ইণ্ডাষ্ট্ৰী লগাওক, এই ইয়াতে মেক ইন ইণ্ডিয়া হৈ কিনি যিমান ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি চাইনাৰ যাৰ ফেক্টৰী আছিলে চবে ভাৰতত বনাই আছে। মেক ইন ইণ্ডিয়া এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেট হ'ব, ইনকাম ইয়াতে হ'ব আৰু ভাৰতখন আগত লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা হ'ব। এই ধৰণে মোদী চাহাবে লৈ গৈ আছে। সেইকাৰণে আপুনি চাওক, বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পাছত অৰুণাচলৰ পেমা কাণ্ডৰ আৰু সোনামেনৰ 7 years এতিয়া বৰদৈৰ ভাইব্ৰেণ্ট ভিলেজ মোদী চাহাবে ক'লে দিছ ইজ নট দ্য লাষ্ট ভিলেজ, দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ভিলেজ অফ ইণ্ডিয়া। তাতে ডিচিএম সাহেব সিএম সাহেবে এতিয়া ডিপিআর বনাই আছে আৰ্মি মিনিষ্ট্ৰীত। তাতে ফাৰ্ষ্ট ভিলেজত টেলিকম হ'ব লাগে, পানী হ'ব লাগে, ইলেক্ট্ৰিচিটি হ'ব লাগে, এডুকেশ্যন হ'ব লাগে, হেল্থ হাইজিনৰ কাৰণে তাত হ'ব লাগে, ৰাস্তা পদূলি হ'ব লাগে। কি ধৰণৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ লাগে? আমি এই ধৰণৰ प्रदेश लगे जहां मोदी जी का सपना है वो जलवा पेमा जी और सोनाबेन साहब का मोहर है। এই ধরনের আপনি সব আগত আমি হাওয়াই জাহাজ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গৈ গুৱাহাটীৰ পৰা গৈ আমাৰ অৰুণাচলৰ টকা সবে তাতে ৰাস্তাতে বৰ্ষা হৈছিল। আজি तेजू में बारिश है तो कभी रुक जाता है, नहीं तो दिल्ली तेजू से दिल्ली उड़ाजाहाज पासीघाटर পৰা হৈ আছে, ইটানগৰৰ পৰা দুইটা প্লাস দিল্লী হৈ আছে, গুৱাহাটী ইটানগৰ কলকাতা বম্বে দিল্লী। এই ধৰণৰ পাৰ্টি যাক নতুন নতুনে কৈছিলে नरेंद्र मोदी आइले क्रिश्चियन को खत्म कर देगा, बीजेपी सरकार आइले मुसलमान खत्म हो जाएगा। आज अपनी साहब नरेंद्र मोदी साहब वेटिकन सिटी में जाके पोप से हाथ मिला के पोप को इनवाइट करता है। केरला में और मुंबई में जाके जितना मुस्लिम का धर्म गुरु का साथ बैठ के खाना खाता है, पीना पीता है। और लास्ट नेशनल एग्जीक्यूटिव मीट में मोदी साहब ने ऐलान किया हमारा बीजेपी कार्यकर्ता सारा दोस्त मुस्लिम का साथ रिलेशन रखना है, माइनॉरिटी का साथ रिलेशन रखना है। ये नेता है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास होना चाहिए, तब जाके देश आगे बढ़ सकता है। मैं इशारा से मिल रहा हूँ, यहाँ बहुत स्पीकर है। ये नाता जी का आने से पहले मैंने बोला था 1 घंटा कम से कम बोलूंगा।
ईस्टर्न पार्लियामेंट का एमपी है ना, आपका समय हम सबको बातों ऐसे करके बहुत स्पीकर्स है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूँगा। आज आप लोग इतना यहाँ दूर दराज से भी आए हैं, आप सभी को यही प्रार्थना करूंगा कि आप जैसे आए थे वैसे सही सलामत निजर घरदय उभति जाबा और आमार नाना रकमर भारतीय जनता पार्टी लिडारर मार्च एक भाषण एक बिन्दुकिता होनी आपनार लोके घरदय उभति जाबा और भालके থাকিব। আজি বৰষুণ দিছে, দিস ইজ দ্য ব্লেসিং অফ গড। আজি বৰষুণ নহলে কি অৱস্থা হলে হয়, ইমান বৰষুণ পচিনা পচিনা হবলগীয়া আমাৰ ভগৱানে আমাক আশীৰ্বাদ দিছে, এই কাৰণে ঠাণ্ডাতে বহিছে। অলপমান ধৈৰ্য ধৰক, জেপি নাড্ডা সাহেব এতিয়া অলপ সময়তে ইয়াত পাই যাব। তাৰ কথা শুনি এই মেছেজটো বিজেপি স্পেচিয়েলি বন্ধুসকলে নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত নিজৰ মণ্ডলত আপোনালোকে মেছেজটো পাছ কৰি দিব। মই ইয়াত আমনি ধৰিছোঁ डीसीएम साहब का गलती है। देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप पर इस देश को क्या फायदा पहुंचा है और खास करके हमारा नॉर्थ ईस्ट को किस प्रकार से एक ट्रांसफॉर्मेशन जो लेके आया है उसके ऊपर में काफी चर्चा हुआ है। बाकी जो जितने भी जो बड़े जो बिंदु है हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा साहब आप लोगों का बीच में रखेंगे। तो पिछले 2 वर्ष में हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी जब से प्रधानमंत्री बना तब से हमारे देश का गौरव पूरे दुनिया में कितने ऊंचाई तक हम लोग जहाँ पहुंचा है ये हम सब लोग जानते हैं। और खास करके हम नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोग हम लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी 2014 से केंद्र सरकार में आने के बाद क्या फर्क हुआ है हम नॉर्थ ईस्ट से अच्छा और कोई जान नहीं सकता है। हम लोग गवाह है पिछले 9 सालों में नॉर्थ ईस्ट में किस प्रकार से प्रगति लेके आया है भारतीय जनता पार्टी के शासन पर। पहले नॉर्थ ईस्ट को देखा जाए तो जो मेजर सिटीज के लोग नॉर्थ ईस्ट के बारे में कुछ जानता ही नहीं, मगर आज माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से उनके पूरे कैबिनेट और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूरे पार्टी के कार्यकर्ता के प्रयास के कारण से आज नॉर्थ ईस्ट के बारे में केवल देश ही नहीं बल्कि पूरे विदेश में इसका चर्चा हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के कारण से पिछले 9 वर्षों में हर एक महीना यहाँ पे अरुणाचल और पूरे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों पर अपने केंद्रीय मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स का टूरिंग चल रहा है। पहले एक दुखद एक समय हुआ करता था जो केंद्र से मिनिस्टर और वो भी साल में केवल एक ही बार शायद नॉर्थ ईस्ट में टूर के बहाने में केवल गुवाहाटी तक ही आता था, गुवाहाटी तक में आता था। और सभी जो मुख्य अखबार है न्यूज चैनल के हेडलाइंस में नॉर्थ ईस्ट में ये मेंशन किया जाता था कि केंद्र से फलाना मंत्री नॉर्थ ईस्ट में आके टूर करके चला गया। आता था केवल गुवाहाटी तक और हम लोग सुर्खियों में पढ़ता था कि नॉर्थ ईस्ट का टूर करके चला गया। तो नॉर्थ ईस्ट में अपने रीजन्स का जो चैलेंजेस है, हर एक राज्य का एक यूनिक चैलेंजेस है। उस चैलेंजेस और उस अपॉर्चुनिटीज को अगर पहचाना है तो हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने पहचाना है। अरुणाचल प्रदेश में मैं ये बोलना चाहेगा, हमेशा मैं पब्लिक फोरम में बोलता हूँ, नॉर्थ ईस्ट का भी नॉर्थ ईस्ट है। Within the northeast, Arunachal Pradesh is the northernmost and Arunachal Pradesh is the easternmost as well. और अरुणाचल प्रदेश जो है नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य है इन साइज में अगर तुलना किया जाए तो नॉर्थ ईस्ट में मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा ये 5 स्टेट को मिला देने से तो जाके अरुणाचल प्रदेश का साइज बनता है। और यहाँ का टोपोग्राफी हम सब लोग जानते हैं। आज हम लोग नामसाई एरिया में है तो नामसाई एरिया तो पूरा फुटिल एरिया में है। यहाँ में हम लोग एसी भी लगाते हैं कमरे में और पंखा भी लगाते हैं।
अभी मानसून का सीजन है, अभी जून का सीजन चल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग का क्लाइमेट धूप देने से काफी गर्म होता है। इसी वक्त अगर हम लोग नॉर्दर्न अरुणाचल के बारे में बात करें तो अभी भी पहाड़ों में बर्फ है, वहां में टेम्परेचर -डिग्री में चल रहा है। तो इस प्रकार का डाइवर्सिटी है हमारा प्रदेश अरुणाचल, और इस अरुणाचल प्रदेश को शेप में लेकर आने के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी ही इसमें सक्सेसफुल हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि 2014 के बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो परफॉर्मेंस रहा है अरुणाचल प्रदेश में, कनेक्टिविटी जो अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो चैलेंज था, आज देखिए हम लोग कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हम लोग कितना कंफर्टेबल हो चुका है। थोड़ा देर पहले हमारे एमपी श्री तपेगांव जी और हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री जोनामिन जी, उनके स्पीच में भी जो जिक्र किया, ईस्टर्न जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, ईस्टर्न अरुणाचल के लिए जो रोड नेटवर्क किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे हाईवे का रोड बना पाया है। अगर आंकड़ा बताए तो आजादी के बाद 1947 से लेके 2013 तक, 1947 से लेके 2013 तक अरुणाचल प्रदेश का टोटल लेंथ ऑफ रोड्स, हाईवे, पीएमजीएसवाई, जितने भी जो विलेज रोड को भी मिला के केवल 30,000 किलोमीटर था। 1947 से लेके केवल 30,000, 30,000। 2014 के बाद अभी तक 9 वर्षों में 20,000 से भी अधिक किलोमीटर ऑलरेडी हम लोगों ने बना के अपने देश में डेडिकेट कर पाया है। तो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों को कनेक्टिविटी क्षेत्र में हम लोग को देखने को मिला है। एयरपोर्ट का जो क्षेत्र है आप सभी को पता है, आप सब लोग विटनेस है। हमारे जितने भी जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड जो 1962 में जो बना था वो डिफॉल्ट होके बैठ चुका था। पिछले 2 वर्षों में मोदी सरकार ने आके जितने भी हमारा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, 7 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को बना के तैयार कर दिया है। उसको डिफेंस भी यूज कर रहा है, उसका हम लोग सिविलियंस भी अभी यूज कर रहा है। 3 नया एयरपोर्ट हमारा तेजू एयरपोर्ट, उसके बाद पासीघाट एयरपोर्ट उड़ान स्कीम में जोड़ दिया है, और सबसे बड़ा सफलता हमारा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है अपना दोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर में, उसको 2 साल के अंतर्गत में ये मोदी साहब के फाउंडेशन 2019 में आके ले किया और इस साल उन्होंने आके उद्घाटन करके चला गया। तो करीबन 3 साल के अंतर्गत में ही एक एयरपोर्ट का फाउंडेशन स्टोन और उद्घाटन। अभी कम्युनिकेशन सेक्टर में आप देखिए अरुणाचल प्रदेश कितना कंफर्टेबल होके बैठा हुआ है, और आने वाला दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार के माध्यम से हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के माध्यम से एडिशनल 2500 किलोमीटर का हाईवे प्रोजेक्ट अरुणाचल में अप्रूवल मिल चुका है। ये हमारा फ्रंटियर हाईवे, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश 3 अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को छूता है। भूटान करीबन 250 किलोमीटर का सीमा हम लोग शेयर करते हैं, और सबसे लंबा बॉर्डर तिब्बत चाइना के साथ में करीबन 1200 किलोमीटर, और ईस्टर्न साइड में हमारा म्यांमार करीबन 550 किलोमीटर का बॉर्डर हम लोग शेयर करते हैं। तो जितनी भी जो बॉर्डर हमारा हेबिटेशंस है उसको कनेक्टिविटी देने के लिए फ्रंटियर हाईवे का ऑलरेडी भारत सरकार ने पिछले साल अप्रूवल दे दिया है। इस साल से काम होना राउंड में शुरुआत हो जाएगी। बाकी कनेक्टिविटी क्षेत्र में मैं आप सभी को एक याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि आज हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा साहब भी यहाँ मौजूद है। नॉर्थ ईस्ट के बारे में जो हम लोग मेंशन करते हैं, तो उन जमाने में जो हमारा स्वर्गीय प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जो सरकार था, तो डोनर मिनिस्ट्री आप सब लोग ने सुना होगा। डोनर मिनिस्ट्री भी उस जमाने में हमारा भारत रत्न प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने ही गठन करके नॉर्थ ईस्ट का लोगों को डेडिकेट किया था। तो तब से लेके अभी तक डोनर मिनिस्ट्री के अंतर्गत में अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट को कितने स्कीम्स हम लोगों को, डेवलपमेंट स्कीम्स हम लोगों को लाभ मिल रहा है। तो इस प्रकार से हमारा नॉर्थ ईस्ट को जो इतना मुश्किल से जो हम लोग गुजर रहा था, उस संकट से निकालते हुए भारतीय जनता पार्टी का लहर अभी हमारा देश में बाकी अन्य राज्यों के साथ में कंपटीशन में लेकर आ रहा है। इंटरनेशनल लेवल तक भी एक्सपोजर हम लोगों को मिल रहा है। अरुणाचल प्रदेश का भविष्य बहुत ब्राइट है। केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम लोगों को और भी हम लोगों को मेहनत करने का जरूरत है। पहले कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो आजादी के बाद में हमारा यूनियन टेरिटरी जो बना,
तब से लेके केवल सिखाया तो करप्ट कल्चर, करप्शन कैसे करना है, पैसा को कैसे मैनिपुलेट करना है, ट्राइबल के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग किस तरह से क्रिएट करना है, ये कल्चर जो है कांग्रेस सरकार ने एक बड़ा एक गलत एक लीगेसी हम लोगों को ऊपर में छोड़ के किया हुआ है। अभी उस जो गलत लीगेसी को साफ करना हम लोगों का ड्यूटी बनता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ अरुणाचल प्रदेश में 26 मेजर ट्राइब है, 100 सब ट्राइब है। इन सारा का जो स्पिरिट, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी टीम इंडिया का स्पिरिट लेकर आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार से हम लोगों को टीम अरुणाचल का विजन देते हुए पूरा हमारा जितने भी जो कम्युनिटी है उनको भी साथ में शामिल करते हुए डेवलपमेंट के एजेंडा में अपना पार्टी के कार्यकर्ता उसको जोड़ते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना ये जरूरत है। राज्य का जो फाइनेंशियल जो ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है आप सबको पता है, 2014 में अपना स्टेट का बजट केवल 12,500 करोड़ हुआ करता था, 12,500 करोड़। अभी इस बार का जो बजट 2023 राज्य का हम लोग 30,000 करोड़ हम लोग पहुंच चुका है। तो ये इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इन लास्ट 9 इयर्स ये हम लोग को देखने को मिला है। तो इतना देखते हुए और भी राज्य में बहुत बड़ा काम हुआ है। आज सभी डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे सीनियर कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है। आप सभी से मैं अनुरोध करेंगे कि अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का बात को सुनते हुए अपना पार्टी के अपना लक्ष्य को और भी आगे हम लोगों को लेके जाना है। और एक चीज हम लोग को ये हम सबको ये मान के चलना होगा कि पिछले बार 2019 में जो चुनाव हुआ था, दोनों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी ईस्टर्न अरुणाचल और वेस्टर्न अरुणाचल में हम लोग ने रिकॉर्ड मार्जिन से जीत के भेजा था दोनों सांसद को। 2024 में अपना ही रिकॉर्ड हम लोग खुद को तोड़ना पड़ेगा। इन्हीं जनशब्दों के साथ में एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और अपना प्रवीण मात्रा जी, अपना युवा जी और अपना दिलीप सेकिया जी, आप सभी को यहाँ स्वागत करते हुए अपना शब्दों को यही विराम करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। आज के विशाल जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे अरुणाचल प्रदेश के बहुत ही यशस्वी और प्रदेश के विकास के साथ जुड़े हुए हमारे डायनेमिक चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी, हमारे बहुत ही जुझारू व्यूराम बागे जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, श्री चौधना मिन जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, हमारे दिलीप सैकिया जी महामंत्री और प्रभारी, हमारे लोकप्रिय लोकसभा के सदस्य और मेरे साथी श्री तापिर गांव जी, संबित पात्रा जी जो नॉर्थ ईस्ट के संयोजक हैं, नमाम रेबिया जी सांसद राज्यसभा, और इतनी देर तक मेरा इंतजार कर रहे हमारे अरुणाचल प्रदेश के ईस्टर्न क्षेत्र के सभी देवियों और सज्जनों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के कार्यक्रम में आप सबके साथ इस जनसभा में मिलने का सौभाग्य मिला है और इस क्षेत्र में आकर के आप सबके साथ चर्चा करने का मौका मिला है। अरुणाचल प्रदेश के मित्र हमेशा हमको प्रेरणा देते हैं और वो प्रेरणा राष्ट्रीयता की भावना से एक डिसिप्लिन सोल्जर की तरह काम करने वाले हमारे प्रेमी जो अरुणाचल प्रदेश एक प्रहरी के रूप में, पहरेदार के रूप में खड़ा है और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है और भारतीयता की मिसाल को संभाल करके चलने वाला अरुणाचल प्रदेश, ऐसे को मैं नमन करता हूं। मुझे इस बात की भी खुशी है और बहुत अच्छा लगता है जब मैं सुनता हूं कि अरुणाचल प्रदेश में अभिवादन में जय हिंद बोलने की आदत है। उसके लिए मेरी तरफ से भी आपको जय हिंद। मित्रों,
और आपका अभिवादन और अभिनंदन करता हूं। अभी अभी पेमा खांडू जी ने आपके सामने पिछले 9 सालों में किए गए कार्यों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है और उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के बारे में, नॉर्दर्न रीजन के बारे में बहुत सी बातें आपसे कही। मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं कि जहां अरुणाचल प्रदेश ने पिछले 9 सालों में विकास किया है, वहीं मुझे पीड़ा भी होती है कि इतने सालों तक आपने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस के लोगों ने अरुणाचल प्रदेश की उपेक्षा, इसकी अपेक्षा की उपेक्षा, दिस होली लैंड हैज बीन इग्नोर्ड बाय कांग्रेस पार्टी फॉर लॉन्ग एंड इट इज ओनली व्हेन मोदी जी केम टू पावर एंड प्रीवियसली अटल बिहारी वाजपेयी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर दैट अरुणाचल प्रदेश was brought into the mainstream and development took place. अभी खांडू जी आपके सामने चर्चा कर रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी चिंता की और यहां डोनियर डिपार्टमेंट खोल के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट के लिए मुख्य धारा में शामिल करने का काम किया, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया और उसको कार्य रूप देने का, उसको इंप्लीमेंट करने का काम अगर किसी ने किया है तो केंद्र से नरेंद्र मोदी जी ने और प्रदेश में पेमा खांडू जी ने आपको आगे बढ़ाया। फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज विजिटेड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन फॉर more than 50 times, and he has visited Arunachal Pradesh more than 5 times. This shows the love, the affection which Prime Minister Modi has for the north-eastern region and especially Arunachal Pradesh. अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे थे, अभी सड़क की बात के बारे में पेमा खांडू ने बताया कि 1947 के बाद 2030 तक आपकी सड़कें 30,000 किलोमीटर बनी और 9 साल के अंदर 20,000 किलोमीटर की सड़क अरुणाचल प्रदेश में बनी। 18 लाख करोड़ रुपीस हैव बीन स्पेंट, 18 लाख करोड़ रुपए खर्च हुआ है 2014 से लेकर 2022 तक। और आपको खुशी होगी कि इस साल इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहा है और भारत और अरुणाचल प्रदेश एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है। एक समय में 12 किलोमीटर सड़क एक दिन में बनती थी, आज 29 किलोमीटर पर डे नेशनल हाईवे बन रहा है। ये भी हमको ध्यान रखना है। आपको जानकर के खुशी होगी कि 54,000 किलोमीटर की नेशनल हाईवे पिछले 9 सालों में बने हैं और उसी तरीके से आपको यह भी खुशी होगी कि रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रीफाइड
हमारे रूरल रोड में गांव को जोड़ने का काम 99% पूरा हो गया है। 3,28,000 गांव को पक्की सड़क से जोड़ दिया गया है और 61,000 हमारे हैबिटेशन, हमारे गांव को सड़कों से जोड़ा गया है। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। अभी अभी हमारे पेमा खांडू जी बता रहे थे कि बॉर्डर तक पहुंचने के लिए क्या सुविधा दी गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक यूपीए की सरकार में एक डिफेंस मिनिस्टर हुए। उन डिफेंस मिनिस्टर ने कहा सड़क ना बनाना ही हमारी स्ट्रेटेजी है, बॉर्डर फोर्स ना बनाना इज द बेस्ट डिफेंस। ये यूपीए के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, क्योंकि रोड नहीं होगी तो दुश्मन भारत में आ नहीं सकेगा। ये भूल गए कि आप रोड बनाओ ना बनाओ, चीन आपके दरवाजे पर खड़ा है, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। बट टुडे आज मोदी जी ने 9 साल में 13,525 किलोमीटर की ऑल वेदर रोड बॉर्डर में बना करके दे दिया है। नाउ वी कैन रीच द बॉर्डर विद इन आवर, घंटों में। आर्टिकल 370 एब्रोगेट कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर इज नाउ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंट्री। ऑल टाइप्स ऑफ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हैव बीन डन। और उसी तरीके से हमारे यहाँ डिफेंस के प्रोक्योरमेंट के लिए 2,71,000 करोड़ रुपए का प्रोक्योरमेंट हुआ है और उसमें से भी 99% प्रोक्योरमेंट आत्मनिर्भर भारत, 99% इंडियन इंडस्ट्री से हुआ है। ये भी हमको जानना है। मित्रों, आपको याद होगा इंडियन चाइनीज स्टैंड ऑफ डोकलाम, आपको याद होगा सर्जिकल स्ट्राइक, आपको याद होगा एयर स्ट्राइक, आपको याद होगा टेररिज्म पर जीरो टॉलरेंस। ये भारत का प्रधानमंत्री अकेले हैं जिन्होंने कहा पाकिस्तान तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुमको इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा और घर में घुस करके मारूंगा। ये भी बात कही और आपने देखा इंडिया ने पहली बार एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक करके उनके निशानों पर अपनी अटैक करके उनके चक्के छुड़ाए। ये भी आपको मालूम। आज भारत अपना AK-203 बना रहा है, आत्मनिर्भर भारत प्रचंड हेलीकॉप्टर बना रहा है, INS विक्रांत भारत की नौसेना की बेड़े में इंटीग्रेटेड बनाया हुआ जो हमारा भारत का है, जो जिसे कहेंगे इंडिजिनस है, वह आज नौसेना, भारत के नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया है। वो भी मित्रों, अगर मैं सुशासन की बात, इफ आई टॉक अबाउट गुड गवर्नेंस, तो आपको जान करके खुशी हो। एक समय में राजीव गांधी कहते थे मैं 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसे मिनट में खत्म हो जाता है। 85% ऑफ द मनी वॉज लीकेज होता था, पिलफर्ड होता। आज मोदी जी ने 22,40,000 करोड़ रुपए इसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लोगों के बैंक के खाते में पहुंचा दिया। ये आज भारत खड़ा है। और इसके कारण 2.2 लाख करोड़ रुपए का जो पैसा था वो पिलफरेज से बचा लिया गया है। वो भी हमको समझना। आज 5,47,000 कॉमन सर्विस सेंटर चल रहे हैं और 2,50,000 गांव में कॉमन सर्विस सेंटर का नौजवान लाभ उठा रहा है। अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं, इंडिया नाउ भारत अब 10वीं अर्थव्यवस्था से छलांग लगा करके 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई। आज भारत स्टील के उत्पादन में 4थी जगह से आगे बढ़ करके दूसरे स्थान पर खड़ा हो गया। In 2014, 2014, India 92% mobile
बाहर से लाता था, विशेष करके हम चाइना से इंपोर्ट करते थे। आज भारत 97% ऑफ मोबाइल इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा है। ये भी हिंदुस्तान में। आज एप्पल में भी देखोगे तो एप्पल में लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, और एप्पल भी इंडिया में बनने लगा है। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू हो गई। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भारत 3rd लार्जेस्ट मार्केट हो गया। टॉय इंडस्ट्री में हमारा एक्सपोर्ट 3 गुना बढ़ गया। और उसी तरीके से अगर हम देखें कि विकास की दृष्टि से आज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में $184.8 बिलियन का US का हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में 50% का राइज हुआ। ये आज भारत की स्थिति है। आपको जानकर के खुशी होगी, अब भारत लेने वाला नहीं, देने वाला भारत हो गया है। भारत ने 470 एयरबैग का ऑर्डर अमेरिका और यूरोप में फ्रांस को दिया है। कितने? 470 एयरबस, 470 बस। यानी समझ लो कि भारत में एयर कनेक्टिविटी का और एयर का डिमांड, एयर ट्रैवलिंग का डिमांड कितना बढ़ने वाला है। और जब 470 बस का ऑर्डर दिया गया तो जो बाइडेन ने कहा, थैंक यू मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हमारे 44 स्टेट में, 44 स्टेट में 10 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी और विकास की दृष्टि से इकोनॉमी का इजाफा होगा। हमारे मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा? उन्होंने कहा 7 बैठक के प्राइम मिनिस्टर के साथ इसको साइन किया। और रोल्स रॉयस कंपनी जिसका इंजन आएगा उसके लिए ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर ने कहा समय दूर नहीं है जब भारत 5वीं से दुनिया की 3री बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। ये भारत खड़ा होगा। ये भी मैं आपको शेयर करूंगा। मित्रों, मैं आप लोगों को और खास करके मीडिया के साथियों को बोलना चाहता हूं। मीडिया के साथी मेरी बात नोट करें। ये कांग्रेस पार्टी के लोगों ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया। इनको कोई पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं। ये बस महंगाई 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 महंगाई। जब हम 5वीं 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं तो अर्थव्यवस्था बिना एम्प्लॉयमेंट की आती है क्या? अगर अर्थव्यवस्था में इजाफा होता है तो एम्प्लॉयमेंट भी आती है। इस बात को भी हमको ध्यान रखना चाहिए। ये आपका नियम है। लेकिन इन अनपढ़ों को कौन समझाए? अब ये महंगाई की बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं और मेरे पत्रकार भाई नोट कर लो मेरी बात। दुनिया में कोरोना आया, दुनिया में मंदी आया, दुनिया में रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई, दुनिया में सप्लाई चेन की प्रॉब्लम आई। आज दुनिया की स्थिति क्या है? हम भारत के मोदी जी के नेतृत्व में इंडिया इज नाउ दी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी है तो भारत। और कहने को नहीं कह रहा हूं, मेरे साथी नोट कर लेना, जनता में बताना। ये राहुल गांधी और ये प्रियंका गांधी चिल्लाते रहते हैं महंगाई महंगाई। इनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। ये आंकड़े ध्यान में नहीं लेते। मैं आपको बताना चाहता हूं, इंडिया की ग्रोथ रेट जीडीपी आज 8.7% पर खड़ी है, 8.7 पर खड़ी है। ऑस्ट्रेलिया 2.2% पर खड़ा है, इंडिया 8.7, ऑस्ट्रेलिया 2.2, जर्मनी 2.6 पर खड़ा है, साउथ कोरिया 4.1 पर खड़ा है, कनाडा 4.5 पर खड़ा है, ब्राजील 4.6 पर खड़ा है, साउथ अफ्रीका 4.9 पर खड़ा है, अमेरिका 5.9% पर खड़ा है, फ्रांस 6.8 पर खड़ा है, यूनाइटेड किंगडम 7.5 पर खड़ा है और भारत 8.7 पर खड़ा है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। लेकिन मैं अनपढ़ों को क्या बताऊं, जो पढ़े ना लिखे ना जाने ना। इन्फ्लेशन, इंडिया का इन्फ्लेशन 4.2
यूरो एरिया 6.1 पर खड़ा है, ऑस्ट्रेलिया 7% पर खड़ा है, इटली 7.6 पर खड़ा है, यूनाइटेड किंगडम 8.7% पर खड़ा है और भारत 4.25% पर खड़ा है। ये भारत का इन्फ्लेशन है। और सुनिए, ये जो खाद्य बोलते हैं, खाद्य सामग्री, खाने वाली वस्तुओं पर महंगाई कैसी है वो भी देख लो। यूनाइटेड स्टेट्स 6.7%, फ्रांस 14.3%। यहाँ खाने की सामग्री पर महंगाई 14.3%। जर्मनी 14.5%, यूरोपियन यूनियन 16.41%, स्वीडन 16.86%, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन 19%, पाकिस्तान आपका पड़ोस में रहने वाला 48.6%। यह है महंगाई। और भारत की खाद्य सामग्री की महंगाई 2.91% है। क्या बताएं नंबर? मोदी जी ने कितनी मेहनत करके आज स्टेनली मॉर्गन की रिपोर्ट है कि इंडिया की अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत है और सबसे स्ट्रॉन्ग है। ये उनकी रिपोर्ट है। हमारी गरीबी 22% से घट करके 10% से नीचे आ गई। हमारी अति गरीबी, एक्सट्रीम पॉवर्टी, is now less than 1%. This is IMF report, International Monetary Fund report. यह है बदलता भारत। आज 80 करोड़ की जनता को एक 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल या 1.5 किलो नमक ये देने की व्यवस्था की है 80 करोड़। और आपके यहाँ भी 8,40,000 लोगों को अरुणाचल प्रदेश में भी 5 किलो गेहूं या 5 किलो राइस, 1 किलो नमक ये दिया जाता है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना 4 करोड़ हाउसेस, और यहाँ पर 43,771 हाउसेस को प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के मकान दिए गए हैं। 2 कमरों का बेडरूम, 1 टॉयलेट, 1 किचन, 1 गैस का कनेक्शन, कोर्टयार्ड और छत बना करके दिया है। तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। ये भी आपको टॉयलेट 11 करोड़ टॉयलेट, और अरुणाचल प्रदेश में 1,48,000 टॉयलेट्स दिया गया। यानी 1,48,000 women used to go for their daily needs outside in the hills. Now they have been given respect and dignity by Narendra Modi. ये भी हमने उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत में 28,774 फैमिलीज को 5 लाख रुपए का अरुणाचल प्रदेश में हर साल 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाए। और सारे देश में 50 करोड़ लोगों को ये हेल्थ कवर दिया जाए। उसी तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 11 करोड़ 78 लाख लोगों को ये फैसिलिटी दी गई है। और इस फैसिलिटी में 62,136 फार्मर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उनको भी इसमें जोड़ दिया गया है और विकास की दृष्टि से उनको भी इसमें आगे शामिल किया गया। इसलिए विकास की दृष्टि से, हर दृष्टि से देश को आगे बढ़ाने का काम गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इनकी चिंता की है तो नरेंद्र मोदी जी ने की है। और धरती पर उसको उतारने में अरुणाचल में पेमा खांडू ने पूरी ताकत लगाई है। ये भी हमको समझना चाहिए। हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने एक टीम के रूप में काम किया। मित्रों, आज दुनिया में भारत की छवि आगे बढ़ी। आज हम G7 में हमेशा बुलाए जाते हैं, भारत को बुलाया जाता है, ग्रुप ऑफ 7। हमको G20 का अध्यक्षता करने का मौका मिला है आदरणीय प्रधानमंत्री। हम क्वाड में शिरकत कर रहे हैं। हम उसी तरीके से विभिन्न संगठनों में U2 में भी हम शिरकत कर रहे हैं, ब्रिक्स में भी हम शिरकत कर रहे हैं, XCI में भी हम अपना लीड रोल ले रहे हैं। हर एक विश्व के संगठनों में भारत का योगदान है। और आपको जानकर के खुशी होगी, अभी पिछले महीने हमारे प्रधानमंत्री जी जापान गए थे।
जापान में जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति मिले G7 की मीटिंग में, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मिस्टर मोदी, आई वांट योर ऑटोग्राफ, आई वांट योर ऑटोग्राफ। ये प्रधानमंत्री की छवि। फिर क्या कहा? नेक्स्ट मंथ यू आर कमिंग टू अमेरिका, वी हैव ऑर्गेनाइज्ड अ स्टेट डिनर and people are complaining me that you have not invited us. We would like to get the invitation because we want to meet Prime Minister Modi. ये अमेरिका में भारत के प्रति अमेरिका का नाम। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर कहता है मोदी इज द बॉस। पपुआ न्यू गिनी का प्रधानमंत्री पाम सुंदर का अभिवादन करता है। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड से फ्लाई करके ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आकर के मिलता है। ये भारत की छवि है। और अंतरराष्ट्रीय जगत को समझने वाले अरुणाचल प्रदेश के मित्रों, आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ, आज से पहले दुनिया में जब भी कोई अंतरराष्ट्रीय नेता इंडिया के बारे में चर्चा करता था तो अंतरराष्ट्रीय भाषा में कहता था इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। जहां इंडिया का नाम लेता था वहीं पाकिस्तान का नाम लेता था। लेकिन 9 वर्षों के अंदर अब कोई नेता इंडिया एंड पाकिस्तान नहीं कहता है, वो इंडिया कहता है, इंडिया कहता है, इंडिया कहता है। पाकिस्तान जहां है वहां रह गया। इट इज नॉट इंडिया एंड पाकिस्तान। इन दोनों को अलग अलग बोलने की भाषा शुरू हो गई है। वो भी मित्रों, विकास की दृष्टि से बहुत सी बातें कही गई हैं, लेकिन हाँ, मैं ये कहूंगा कि आपका डोनियो एयरपोर्ट ईटानगर का 640 करोड़ रुपए का वो बन करके आपको समर्पित हो गया है। 2 हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में, पारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 1640 करोड़ रुपए का, और उसी तरीके से कामेंग का हाइड्रो प्रोजेक्ट 8200 करोड़ रुपए का, उसका काम जो है उसको शुरू किया गया है। उसी तरीके से दिबांग और लोहित रिवर पर जो रिवर पर जो ब्रिजेस है वो अभी करोड़ों की लागत से उसको भी ब्रिजेस को बनाने का काम हुआ है। उसी तरीके से 19,863 किलोमीटर की सड़क 9 वर्षों में बना है और इस दृष्टि से एक विकास का काम हुआ। 44,000 हमारे रोड सैंक्शन हुआ है फ्रंटियर हाईवे पे, और वो फ्रंटियर हाईवे भी आपको मिलेंगे। 258 4G टावर ऐड किए गए हैं और 1683 रिमोट विलेजेस को भी कनेक्ट किया जा रहा है नेटवर्क से, 4G नेटवर्क से। यह भी हो गया। और एयरपोर्ट तेजू में, पासीघाट में वो भी एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं और नॉर्थ ईस्टर्न अरुणाचल के लिए एविएशन मैप में कंट्री में जोड़ने का काम किया जा रहा है, वो भी हम लोग जान रहे हैं। फ्री डायग्नोस्टिक सेंटर 25 लाख टेस्ट के बेनिफिट के साथ 8 लाख पेशेंट्स को ये बेनिफिट दिया गया है। 108 इमरजेंसी रिस्पांस एम्बुलेंसेस, ये भी सर्विसेज जो है ये आपको मिली है। आयुष्मान भारत के साथ साथ चीफ मिनिस्टर आरोग्य अरुणाचल योजना, जिसके तहत 1,34,870 बेनिफिशियरीज को बेनिफिट दिया जा रहा है। उसी तरीके से आत्मनिर्भर बागवानी योजना के तहत 3,531 फार्मर्स को 345 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस, आर्थिक मदद दी जा रही है। सीएम एग्रीकल्चर फार्म मैकेनाइजेशन प्रोग्राम में 6,714 एग्रीकल्चर इक्विपमेंट हमारे किसान भाइयों को दिया जा रहा है। इसलिए सर्वांगीण विकास, सबका विकास, सबको साथ लेकर के चलने का काम हमारे पेमा खांडू जी ने किया है, हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं इनको बधाई देता हूँ अच्छे काम के लिए।